class 10 students, how are you? So we were doing the development chapter and today we'll continue with the same. We have understood about development, meaning of development, developmental goals. हमने समझा था कि per capita income क्या होती है, तो all of that we covered in part 1 and 2. Today in part 3 we'll talk about that apart from income और कौन से developmental indicators होते हैं और कैसे हम BMI मेजर करते हैं, कैसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मेजर करते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स वी अंडरस्टैंड. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, we'll talk about income and other criteria. That means income is not an adequate indicator of development. हमने पढ़ा था ये previous part में कि income ही adequate नहीं है और भी चीज़ें important होती हैं. अब वो चीज़ें क्या हैं उससे उनको समझने के पहले we have to understand the meaning of infant mortality rate, literacy rate and net attendance ratio. So let's understand the meaning of infant mortality rate. Infant, basically the babies which are under the age of 1 year are known as infants, right? So the number of children that die before the age of 1 year per 1000 live births is your IMR. Now why we say mortality? Mortality means death. Mortality means death rate, okay? So the number of children that die before the age of 1 year per 1000 live births is known as infant mortality rate. Second, literacy rate, the proportion of literate population. Literate means who can read and write. That is literate, okay? Read and write. Now that is the people who are in the age group of 7 and above. वो लोग जो पढ़ाई कर सकते हैं, जो पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं 7 साल की एज से ऊपर, that is literacy rate. Okay. Next is net attendance ratio. The total number of children of age group 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in that age group. Now what is this? बहुत confusing सा दिख रहा है ये समझने में. ये बेसिकली वो बच्चे होते हैं जो 14 to 15 ईयर्स के एज ग्रुप में होते हैं और जो स्कूल जा रहे होते हैं. अब ये रेशियो है, रेशियो बोला है तो उसका मतलब ये है कि इट इज़ अ परसेंटेज, इट इज़ अ डिविजन ऑफ टोटल चिल्ड्रन. यानी कि अगर मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 to 15 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दैट एज ग्रुप, दैट विल गिव यू नेट अटेंडेंस रेशियो. नाउ मूविंग ऑन. So in the previous video we have understood that per capita income के बहुत सारे limitations थे. per capita income बाकी चीज़ें measure नहीं कर पाता था, जैसे health हो गया, education हो गया. So we are now understanding कि हमें exactly कैसे comparison करना है, क्या per capita income सही में useful है या नहीं है. So we can understand this by comparing the data of 3 different states. So एक टेबल आपको यहाँ पे गिवन है जहाँ पे आपको 3 स्टेट्स हरियाणा, केरला एंड बिहार की पर कैपिटा इनकम को कंपेयर किया हुआ है एंड उन्हीं स्टेट्स की IMR, लिटरेसी रेट और NAR को कंपेयर किया हुआ है. सो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे हरियाणा की पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है एज कम्पेयर टू केरला एंड बिहार. हरियाणा स्टैंड्स एट 1,80,174 एंड वेयर एज अगर हम बात करें IMR और बाकी चीज़ों की तो केरला का IMR, लिटरेसी रेट और NAR बहुत अच्छा है. तो व्हाट कैन वी से फ्रॉम दिस टेबल, व्हाट कैन वी ऑब्जर्व, व्हाट कैन वी कंक्लूड? हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि per capita income is not an appropriate indicator for comparing the development. यानी कि Kerala has a lower per capita income than Haryana, but it is better than Haryana in IMR, literacy rate and net attendance ratio. Okay, so here what difference or what thing we have understood is that per capita income is not the only important criterion for comparing development of countries. We need to compare their IMR, literacy rate and NAR to understand their development. Okay. So from this table we have understood that we need such provisions in other states as well.
that we have understood that per capita income of Haryana is higher than that of Kerala. Per capita income तो high है, but Haryana lags behind Kerala in terms of IMR, literacy rate and other crucial areas. Why is this so? क्यों हरियाणा पीछे रह गया? इनकम तो बहुत अच्छा अर्न कर रहा है हरियाणा, लेकिन उन्हीं टर्म्स में वहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन और बाकी एरियाज़ में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि मनी इन योर पॉकेट कैनॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल. अगर आप अभी का सिनारियो देखिए, अभी कोविड का सिनारियो चल रहा है, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, यू हैव लॉट्स ऑफ मनी, यू हैव लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज़ एट योर हाउस, लेकिन अभी भी बहुत लोगों को बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं. इवन व्हेन दे हैव लॉट्स ऑफ मनी, तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे कोविड की केयर दी जा रही है, वहाँ पे अभी भी बेड्स अवेलेबल नहीं हैं. किस रीज़न से नहीं है? बिकॉज गवर्नमेंट ने पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करी हैं प्रॉपरली उन एरियाज़ में अभी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाई है. तो अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है भी तो उसका क्या फ़ायदा, राइट? सो कुछ ऐसी सर्विसेज, कुछ ऐसे गुड्स हमें गवर्नमेंट से चाहिए होते हैं जो हमारा मनी भी हमें नहीं दिलवा सकता. ओके, सो फॉर मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे इज़ टू प्रोवाइड दोज गुड्स कलेक्टिवली. यानी कि अगर हम चाहें कि हमें पार्क में घूमना है, हम अपने लिए पार्क नहीं बनवा सकते. हमें उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होगा, बहुत सारी पावर चाहिए होगी, बहुत सारा लैंड चाहिए होगा, राइट? तो हम अपने लिए पार्क नहीं बनवा सकते. इफ़ सपोज़ मुझे पढ़ने जाना है, मुझे एजुकेशन चाहिए, क्या मैं अपने लिए कॉलेज या स्कूल बनवा सकती हूँ? नो. दोज थिंग्स हैव टू बी गिवन बाय द गवर्नमेंट ओनली और फॉर कलेक्टिव कंजम्पशन ओनली. Okay, so what do we require for such things? What do we require? We require public facilities. ये बहुत important चीज़ है यहाँ पे समझने के लिए कि पब्लिक फैसिलिटीज़ ही वो फैसिलिटीज़ हैं जो हमें एक्चुअली में अच्छा लिविंग प्रोवाइड कर सकती हैं. Okay, so what do we understand by these facilities? These are those facilities and services which are required for society or for public to lead a better life. So ऐसी सर्विसेज, ऐसी फैसिलिटीज़ जो इंसानों की, लोगों की लाइफ को अच्छा बनाती है, बेटर बनाती है, दोज आर पब्लिक फैसिलिटीज़. और जनरली इसको गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है. नॉर्मली इन 98% केसेस गवर्नमेंट ही पब्लिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराती है. But even private sector also can indulge and can also provide services अगर उनका इंटरेस्ट हो तो. बट क्यों नहीं करते वो लोग? क्योंकि उनको पता है इसमें प्रॉफिट नहीं है, इसलिए. So here we have understood that what things are important to lead a good life. Those are public facilities. Okay. So why these facilities are important? Why do we need such facilities? We need such facilities for maintaining law and order, cleanliness, quality of life and comfort to common man. अगर हमें पार्क में जाना है, अगर हमें हॉस्पिटल में जाना है, स्कूल, एजुकेशन चाहिए, so those are the comfort and quality. So it is very important. पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक पर्टिकुलर स्टेट या एक पर्टिकुलर एरिया में फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. अगर पुलिस नहीं होगी तो कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, राइट? क्लेanliness इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड कंफर्ट टू मैन. अब ये सब कहाँ से आते हैं? दीज आर कमिंग फ्रॉम पब्लिक फैसिलिटीज़. ओके, दीज फैसिलिटीज़ हेल्प पीपल एंड प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटीज़. ये फैसिलिटीज़ जो हैं लोगों को काम करने के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं. दे हेल्प पीपल इन मूविंग फ्रॉम, लाइक अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट हेल्प्स पीपल इन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, right? It develops national feeling and a sense of collective responsibility. अगर हमारी कंट्री में अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, अच्छा ट्रांसपोर्ट है, अच्छा पार्क्स हैं, अच्छे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सो वी कैन एक्चुअली हैव अ गुड नेशनल फीलिंग कि हमारी कंट्री सबसे टॉप पे है, हम अच्छे से डेवलप हो पा रहे हैं. So these are the reasons that why such facilities are very important. So example can be public transport, hospitals, police and government colleges, schools, parks and
All these examples will be important from examination point of view also. Last year also a 3-mark question came जहाँ पूछा था कि what are the public facilities, why are they important, give examples of 2 of them. So this is very important from examination point of view. So now when we've understood that per capita income जो है adequate indicator नहीं है, तो अब हमें कैसे कंपैरिजन करना है, अब हम कैसे पता लगाएंगे कि एक कंट्री दूसरे से बेटर है कि नहीं है, डेवलप्ड है कि नहीं है. So we will find that out from Human Development Index. So what is the meaning of Human Development Index? It is a tool developed by UNDP. UNDP is United Nations Development Program to measure a country's overall achievement in health, education and standard of living. So it is an overall indicator. It tells about the overall human achievement. ओके इसका नीड क्या है? नीड ऑब्वियसली यही है कि इनकम इज नॉट अ कंप्लीट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट इन इट सेल्फ. क्योंकि इनकम एडिक्वेट नहीं है तो हमें और इंडिकेटर्स भी चाहिए. और इंडिकेटर्स कौन से होंगे? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ओके अब हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया है, ये 2017 का डेटा है. यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया है बिटवीन few countries and we have seen that Sri Lanka is better than India in terms of national income, in terms of life expectancy and in terms of years of schooling. And that's why इसकी जो रैंक है इंडिया से बहुत ही बेटर है. 76 है HDI रैंक, पर इंडिया की जो रैंक है 130 है. तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बेसिकली हम क्या क्या मेजर करते हैं, मैंने बताया आपको, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. एंड ऑब्वियसली हम इसमें कंट्रीज़ को रैंक करते हैं. ओके सो वाई श्रीलंका इज़ बेटर देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज इंडिकेटर्स? बिकॉज वहाँ पे बेटर पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट ज़्यादा इन्वेस्ट करती है एजुकेशन में, हेल्थ में, लोगों के बेटरमेंट में. वेराज इंडिया में ऐसा अभी तक नहीं हो रहा है. अभी भी इन्वेस्टमेंट जो है वो एजुकेशन सेक्टर में सिर्फ 6% है, विच शुड हैव बीन मोर देन दैट. सो ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक कंट्री की ओवरऑल अचीवमेंट के लिए. और भी आप देखते हो कंट्रीज में म्यांमार, पाकिस्तान आर लोअर देन इंडिया, बट इंडिया इज़ नॉट हैविंग अ वेरी गुड रैंक. 130 रैंक बहुत अच्छी नहीं है. UN की मेंबर कंट्रीज आर 192. 192 में से 130 रैंक इज़ नॉट दैट गुड. सो वी नीड टू वर्क टूवर्ड्स इट एंड ओनली द यूथ ऑफ टुडे कैन वर्क टूवर्ड्स इट फॉर टुमारो. अगर आप लोग चाहोगे तभी हमारी रैंक जो है ये बेटर हो पाएगी, व्हेन यू विल स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स इट. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ बॉडी मास इंडेक्स. बॉडी मास इंडेक्स बेसिकली एक इंडिकेटर है ऑफ न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट. इट इंडिकेट्स द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. एंड हाउ डू वी मेजर इट? BMI इज इक्वल टू weight in kilograms, okay, upon the square of height in meters. तो आपकी जो भी हाइट है, आपकी हाइट हम यूजुअली सेंटीमीटर्स में निकालते हैं, उसे कन्वर्ट करना है मीटर्स में, उसको स्क्वायर करना है और डिवाइड करना है वेट से. तो यू विल फाइंड आउट द BMI. सो BMI के वेरियस रेंजेस हैं, 4 रेंजेस हैं. अगर BMI इज लेस देन 18.5 देन द पर्सन इज नोन एज अंडरवेट और अंडर नरिश्ड. ओके इफ़ BMI इज़ बिटवीन 18.5 टिल 24.9 तो जो पर्सन है वो नॉर्मल या हेल्दी कहलाता है. ओके इफ़ BMI इज़ बिटवीन 25 to 29.9 देन द पर्सन इज़ कॉल्ड एज ओवरवेट. एंड इफ़ BMI इज़ मोर देन 30 द पर्सन इज़ कॉल्ड एज ओबीस. राइट सो BMI इज़ द इंडिकेटर ऑफ न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट. मेनी अ टाइम्स इसमें से 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि what is the BMI range for normal person, obese person, healthy person. All these questions are being asked. So please make sure that आप ये अच्छे से समझो और रिवाइज करो. So moving on to the difference between Human Development Report and World Development Report. What differences are there in these two reports? So class, Human Development Report जो है वो कौन पब्लिश करता है? It is published by UNDP. I told you this earlier also. And जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इट इज़ पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक इसको मेजर करता है. ओके ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कंपेयर्स कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी रेट, हेल्थ,
एनरोलमेंट रेशियो ऑफ द पीपल। सो यहाँ पे ओवरऑल अचीवमेंट की बात हो रही है, ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट की बात हो रही है। वेयरएज वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट सिर्फ पर कैपिटा इनकम पे फोकस करता है, उसको और कोई लेना देना नहीं है, राइट। यहाँ पे इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कंट्रीज आर रैंक्ड, हम HDI रैंक निकालते हैं, सो वी रैंक कंट्रीज लाइक 1 2 3 till 192। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में बेसिकली कंट्रीज कैटेगराइज स्पेसिफाई करते हैं कंट्रीज को एज डेवलपिंग, डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ their per capita income, rich income, low income, middle income, like this। जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट मीन्स वाइडर कॉन्सेप्ट है, बहुत चीज़ें इसमें इंक्लूड हो रही हैं। वेयरएज जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है इतना ब्रॉड कॉन्सेप्ट नहीं है, नैरो कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वो है पर कैपिटा इनकम। इसको और कुछ लेना देना नहीं है कि इंसान की हेल्थ डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही है, एजुकेशन का कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इट डजंट केयर अबाउट दैट, दे ओनली केयर अबाउट दी पर कैपिटा इनकम। So now talking about the very important questions which are being asked from this topic which we have done today. The first question is what is IMR, literacy rate, NAR. So all of this gets asked in 1 mark. Definitions में आ सकता है ये. How does Human Development Report compare the country on the basis of per capita income, on the basis of literacy, on the basis of education? All these things are important for Human Development Report on the basis of HDI. So ये 1 mark का क्वेश्चन है. What is HDI? It is a tool developed by UNDP which measures the human achievement, overall development of the human in terms of education, health, literacy, all these terms. Okay. Name the institution which publishes the report. It is UNDP. Why Kerala has a low IMR? Because obviously केरला हैज़ बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़, केरला में एजुकेशन लेवल अच्छा है, वहाँ पे लोग ज़्यादा अवेयर हैं, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, इसलिए वहाँ पे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है बहुत लो है। हाउ इज़ BMI कैलकुलेटेड? ऑब्वियसली हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इट इज़ इक्वल टू वेट इन kgs अपॉन द स्क्वायर ऑफ हाइट in meters. This can also be asked in 1 marks. Which neighboring country of India has better performance in terms of human development than India? It is Sri Lanka. We have just done this. In what respect is the criterion used by UNDP? Which criterion? That is per capita income. No, that is HDI. Sorry, that is HDI. For measuring development different from the one used by World Bank. So they are asking that how is HDI different from per capita income in terms of comparing development. This is a 3 mark question. You have to explain here the difference between Human Development Report and the World Development Report. We have just done this previously, so please revise that. So next question is differentiate between human development and economic development. This is also for 3 marks. Human development talks about the development of the human overall achievement, and economic development talks about the development in per capita income. So 3 points here we'll just discuss about broad concept, narrow concept, measures through HDI, measured through per capita income. What are public facilities? Why are they important? Give examples. We have done this similar question in the notes, so please revise that. Differentiate between Human Development Report and World Development Report. Same question ये दोबारा पूछा गया है यहाँ पे. So in board exam also same question is asked in a twisted format. So answer same रहता है but आपको question का जो format पूछा जाता है वो different हो जाता है. So I hope that this video was helpful to all of you. Please like, share and subscribe to our channel, and we will be finishing this chapter in part 4. So please subscribe and press the bell icon for notifications for the next part, and stay tuned. Thank you.